فون بھی بند ہوں. 7 تاریخ کو ویسے بھی سعودی وزیر داخلہ بھی آ رہے ہیں, ابھی سعودی ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے میرے پاس. دنیا اسلام کے سینکڑوں وزیر خارجہ اور ان کے ذمہ داران آ رہے ہیں. اگر آپ کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے ان کو ناراض کرنا ہے, میں نے کوئی شوق سے نہیں کہا تھا کہ آپ 4 دن بعد آ جائیں. اب آپ 23 کو ہی آئیں, اب آگے پیچھے نہ ہوں. 23 کو آئیں, انشاءاللہ تعالی آپ سیاسی شکست کھائیں گے. 23 مارچ کو بھی آپ ذلیل و خوار ہوں گے اور اپنے ساتھ منہ لے کے واپس جائیں گے, اور آپ کے لیے ہم کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے تا وقت آپ نے کوئی قانون کے لیے مسئلہ پیدا نہ کیا. تھینک یو ویری مچ. جی ادھر آگے آ کے کر لیں, آگے فٹافٹ. 3 منٹ ہیں, میں 10 منٹ سے زیادہ قوم کا وقت جو ہے وہ. کوئی عوام سڑکوں پہ 3.5 سال میں نہیں نکلی. یہ 23 مارچ میں جو آئیں گے, یہ ٹریکٹر ٹرالی کتنی عوام نکلی ہے جی؟ کوئی عوام نہیں نکلی ٹریکٹر ٹرالی میں بھی. اور یہ صدارتی نظام یا ایمرجنسی ابھی تک کابینہ میں نہیں آیا. نہ میں صدارتی نظام پہ تبصرہ کر رہا ہوں اور نہ میں ایمرجنسی پہ تبصرہ کر رہا ہوں. یس جب مرضی آئیں جی. 23 مارچ سے اب پیچھے نہ ہٹیں. میں 1 مہینہ انہیں کہتا رہا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں, عقل مند ہوتے تو شاید آج ان کی کوئی ہمیں قانونی تھریٹ ہوتی. ایک بل عمران خان کا 3.5 سال میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا. کوئی چیز ناکام نہیں ہوئی. اب آپ 23 مارچ کو ہی آئیں اور آ کے ذلیل و خوار ہوں انشاءاللہ تعالی. جی پرائم منسٹر کا چین کا دورہ, اس کی اہمیت بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو استعفیٰ لیا گیا شہزاد اکبر کا. چھوڑے پرے. 3 تاریخ کو فروری کو پرائم منسٹر چین جا رہے ہیں. بہت اہم دورہ ہے, اور پرائم منسٹر کا یہ دورہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے نتائج سے نکلے گا. لاسٹ کوسچن. رائٹ, یہ فواد صاحب نے کل تفصیلی جواب دیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں عمران خان کو ایک آنسٹ آدمی سمجھتا ہوں. پھر یہ کہہ رہا ہوں وزیر سمجھ کر نہیں. اور یہ جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے, فواد نے کل کہا کہ وہ اس پہ ایک تفصیلی جواب دے گا. جی امید. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں خطرناک ہوں گا, لیکن اپوزیشن کے لیے کہ یہ جو میسج ہے کسی اور کو دیا گیا. کسی کو نہیں دیا گیا, اسی کو دیا گیا ہے جس کو اپوزیشن کو دیا گیا ہے. باقی الحمدللہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ان کو پتہ لگ جائے گا. ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, اور اگر وہ ذہنی طور پر, عقلی طور پر اتنے باشعور ہوتے, اگر ان کو سیاست کی سمجھ ہوتی, تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی بات پہ, ایک ہی لائن لینتھ پہ. کوئی کنفیوز نہیں ہے. یہ کنفیوز نظر آتا ہے آپ کو؟ ابھی اس نے صحت کارڈ کی تقریر کی ہے. شیخ رشید احمد گفتگو کر رہے تھے, کہتے ہیں کل جو گفتگو کی گئی ہے فضل الرحمان کی جانب سے, اس میں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ 23 مارچ کا دن بہت حساس دن ہے, اور انہوں نے کہا کہ فائنینس بل سمیت تمام جگہ ہم نے ان کو شکست دی ہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کے خلاف اتنی مہم چلائی گئی جو کبھی کسی کے خلاف نہیں دیکھی, مگر جب سروے سامنے آیا تو عثمان بزدار سب سے زیادہ کامیاب وزیر اعلیٰ بن گئے. پہلے کے وزیر اعلیٰ ہیٹ پہن کر گھومتے تھے, کھانسی بھی آتی تھی تو علاج کے لیے بیرون ملک جاتے تھے. باہر علاج کے لیے جانے والوں کو کیا پتا کہ غریب پر کیا گزرتی ہے. امیروں کے لیے پرائیویٹ اور غریبوں کے لیے سرکاری ہسپتال تھے. ہیلتھ کارڈ کے لیے 450 ارب خرچ کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح کے ایشین ٹائگر بن جائیں گے. کوئی تو کوشش کرتا کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو بنیادی اس کی ضروریات پوری کرتے. جو سربراہ آئے ہیں وہ بھی یہی اسی کے انتظار کرتے رہے کہ جی پہلے پاکستان میں خوشحالی آئے گی, پھر ہم لوگوں کے لیے فلاحی ریاست کی طرف جائیں گے. ایلیٹ کیپچر ایک طرف ہو گیا, طاقتور کے لیے, قانون کمزور کے لیے دوسرا, اور دوسری چیز ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی فلاحی ریاست کی طرف, بلکہ
अमीर गरीब में फ़र्क बढ़ता गया। वक्त साबित करेगा कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। 450 अरब रुपया ये खर्च किया जा रहा है इस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इससे करीब भी कोई पहुंचा नहीं किसी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। उस्मान बुज़दार आपको आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। उस्मान बुज़दार पंजाब के सबसे पासमानदा इलाके से, इनको पता है कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है, उनको पता है कि वहाँ घरों के अंदर क्या तकलीफों को सामना करना पड़ता है। पंजाब की लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना ये सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर कर सकता था जिसके अंदर एहसास है इंसानियत का। कि इतनी कैंपेन चलाई गई, इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी। लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गया। आज जी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियाँ पहन के, कोई बूट पहन के फिरा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। ये सिर्फ हेल्थ कार्ड नहीं है, ये एक पूरा हेल्थ सिस्टम है। नंबर 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर अब प्रेशर पड़ेगा, कंपटीशन होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स देहाती इलाकों के अंदर अब जाएंगे। हम पूरी दुनिया के लिए एक दिन मिसाल बनेंगे कि असल में एक वेलफेयर स्टेट क्या, फलाई रियासत क्या होती है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर गौर करना होगा कि एक नाअहल और करप्ट शख्स मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक है। ये रिपोर्ट निज़ाम बैठ जाने का ऐलान और इस बात का सबूत है कि इमरान नियाज़ी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। रिपोर्ट को झुटलाने के बजाय गिरेबान में झांकना और खुद एहतसाबी दरकार है। इमरान नियाज़ी ने करप्शन का 10 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने करप्शन में उन्हें पीछे छोड़ दिया जिनके खिलाफ सियासत में आने का दावा किया था। मईशत तबाह, महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई, लेकिन इमरान नियाज़ी को अब भी अपने झूठे इमेज को बचाने की फिक्र है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 पॉइंट्स गिरा है, जिससे मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी और कारोबारी माहौल को नुकसान पहुंचेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त ने साबित किया करप्शन का खात्मा नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का 1 विंडो ऑपरेशन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आलमी बैंक पाकिस्तान की 5.37% से तरक्की की तस्दीक कर रहा है। कोरोना से निमटने की हुकूमती पॉलिसीज़ की तारीफ आलमी सतह पर हो रही है। उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कानून की हुक्मरानी में तनज़्ज़ुली हुई है, किसी को नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं, लेकिन प्रेस रिलीज में किस्से जोड़े गए। ऐसे किस्से जोड़े कि करप्ट अपोजिशन की जरूरत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सके। अल्लाह की शान है, नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें। आसमान पर थूकना उसे कहते हैं। मियाँ साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपड़ासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में हैं। अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर हैं। तो नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कहती हैं करप्शन के आलमी सर्टिफिकेट के बावजूद आपकी झूठी ज़बान चले जा रही है। ट्रांसपेरेंसी चोर इसलिए कह रही है कि तारीखी करप्शन जारी है। ट्रांसपेरेंसी कह रही है कि हुकूमती और सरकारी मामलात में करप्शन में इजाफा हुआ। इमरान खान से पूछ लें या उनके माजी में दिए भाषण गौर से सुन लें। इमरान खान ने बताया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सी करप्शन की निशानदही करती है। आटा, चीनी, दवा, बिजली, गैस, कोविड फंड में चोरी के किस्से की रिपोर्ट में जोड़े गए हैं। अवाम जानते हैं कि इमरान खान ने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा सब चोरी किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन के एजेंडे को पाकिस्तान के मफादात से मुतसादिम करार दे दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुल्की मफादात को बालाए ताक रख चुकी, इंतशार फैलाकर अपने मनफी अज़ाइम की तकमील चाहती है, लेकिन हर मौके पर मनफी सियासत करने वाले अवाम में बेनकाब हो चुके। उस्मान बुज़दार का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में 5 साल का मैंडेट मिला है। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने सदारती निज़ाम की बाज़ गश्त को अपोजिशन का शोशा करार दे दिया। एवाई न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा सदारती निज़ाम पर अपोजिशन खुद बयानबाजी कर रही है। उन्होंने पेशगोई की कि 23 मार्च से पहले अपोजिशन जमातें लड़ पड़ेंगी क्योंकि ये अपने मफादात का सौदा करना चाहती हैं। दुनिया को पता है कि उस रिपोर्ट क्या वैल्यू और अहमियत है। माजी में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो गिलानी साहब हैं उनको इन्होंने सर्बिया में बस लगा। ये कभी भी एक पेज पे नहीं होगी, ये सिर्फ सौदा करना चाहती है अपने मफादात का। जिसको बेहतर डील मिले वो इसके इंतजार में है।
लेकिन हमारी तरफ से ना डील मिलनी है ना डील मिलनी है। 49वीं कॉल होगी, 23 मार्च बहुत दूर है, उससे पहले ही एक दूसरे से लड़ पड़े। अभी पीपल्स पार्टी ने एक ट्रैक्टर मार्च करने की कोशिश की थी, तो वहां पर हमें पता चला कि टोटल 297 लोग आए थे, उस जगह पर इकट्ठे हुए थे उस ट्रैक्टर मार्च के ऊपर। तो उन्होंने चुप करके ना उसकी कोई फिर कहीं खबरगिरी की, ना कोई उसके ऊपर शोर मचाया, चुप करके कान लपेट के घर को निकल गए। ना हुकूमत ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, खुद से इनको परेशानियां हैं, खुद से बयानबाजी करे जा रहे हैं। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो इकॉनमी के ऊपर है। उधर पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद खान कहते हैं कि चोरों की अंजुमन ने वजीर आजम से एनआरओ लेने के लिए हर हरबा आजमाया मगर नाकाम रही। एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर लें, कुछ नहीं मिलेगा। ये वो गाड़ी है जो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रही। ये लोग नाकाम एहतजाज की हैट्रिक के बाद एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं। अगर वजीर आजम इनकी मर्जी की 34 शिकें मान लें तो ये एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर मजीद 15 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेर इलाज 1293 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सबसे ज़्यादा कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 41% के करीब रही। 24 घंटे में कराची में 3769 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1542 मस्बत निकले। पेशावर में मस्बत शरह 27% से जायद, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद में 26% से जायद रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफे पर ज़िलाई इंतज़ामिया ने 5 तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है कि पेशावर के 3 सरकारी और 1 निजी स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.8% हो गई है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए कवानीन में मजीद सख्ती का फैसला। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म, फाइनेंसिंग रेगुलेशंस में तरामीम मुतारिफ करा दी गई हैं। FBR ने रियल स्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल स्टेट एजेंट्स पर मुजरिमों से कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी मुतालिका सजा याफ्ता शख्स से कारोबार ना किया जाए। सजा याफ्ता अफराद को DNFBPs में सीनियर ओहदा ना दिया जाए। बेनिफिशियल ऑनर्स सीनियर ओहदों में तब्दीली पर भी FBR को मतला किया जाए। वेलकम बैक। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें, सदर मुमलिकत ने शहजाद अकबर का बतौर मुशीर इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। शहजाद अकबर का बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब 24 जनवरी से इस्तीफ़ा कबूल किया गया है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। शहजाद अकबर ने बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब इस्तीफ़ा दिया था, जिसे कबूल कर लिया गया है और इस हवाले से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर मुमलिकत ने मुशीर एहतसाब का इस्तीफ़ा कबूल किया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद का कोरोना टेस्ट फिर मस्बत आ गया है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद ने खुद को करंतना कर लिया है। वज़ीर सेहत को तेज़ बुखार, खांसी की अलामात हैं। वज़ीर सेहत पंजाब का 4 जनवरी को पहला कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। जावेद इकबाल PAC के आज के इजलास में शरीक नहीं होंगे। नैब ने ख़त के ज़रिए मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया है। शांगला में लैंडस्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां रोज। मलबे तले दबे बच्चे की तलाश जारी है। शाम स्वात रोड भी 4 रोज से बंद है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज खान से। जी सरफराज। 5 रोज़ कबल अलपुरी के इलाका फैज़ाबाद में लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसमें 5 अफराद जो है वो जामा हो गए थे। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, ताहम एक बच्चा जो है वो 5 रोज से लापता है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर शांगला मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। रेस्क्यू वर्कर्स हैं, वो डे नाइट लगे हुए हैं बगैर किसी वक्फे के और कोशिश कर रहे हैं। बच्चे की लाश अभी तक वो मिसिंग है स्टिल। उसके लिए अभी हम जो लास्ट वो कर रहे हैं कोशिश वो ये है कि मैंने बाकायदा पिंडी से जो स्निफिंग और कैनाइन डॉग्स की जो टीम है वो वहाँ से मंगवाई है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज शाम तक उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। स्नैप चेकिंग के लिए जो डॉग्स है वो भी मंगवाए गए हैं और इंशाल्लाह ऑपरेशन जो है वो जल्द मुकम्मल हो जाएगा।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।